السلام علیکم۔ عملیات کی پراسرار دنیا میں خوش آمدید۔ ایک عامل ہونے کے ناطے میں اس موضوع پر انتہائی سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ روشنی ڈالوں گا، کیونکہ حصار عملیات کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر عمل تلوار ہے تو حصار ڈھال ہے۔ اس کے بغیر عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہو سکتا ہے۔ درج ذیل میں حصار کی تعریف، اہمیت اور اقسام کی تفصیلی وضاحت دی گئی ہے۔ حصار کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے حصار کا مطلب قلعہ بند ہونا یا گھیراؤ ہے۔ عملیات کی اصطلاح میں حصار سے مراد وہ نادیدہ یعنی انویزیبل روحانی لکیر یا دائرہ ہے جو کوئی عامل کسی بھی عمل، چلے یا وظیفے کے دوران اپنی حفاظت کے لیے اپنے ارد گرد کھینچتا ہے۔ جب کوئی عامل کسی موکل، جن یا روحانی قوت کو مسخر کرنے یا بلانے کا عمل کرتا ہے تو دوسری طرف سے مزاحمت ہوتی ہے۔ شیطانی قوتیں، بدروحیں یا دیگر مخفی مخلوقات عامل کو ڈرانے، نقصان پہنچانے یا عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ حصار وہ روحانی دیوار ہے جو ان بلاؤں کو عامل کے قریب آنے سے روکتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنگ کے میدان میں بلٹ پروف جیکٹ پہننا۔ حصار کی اہمیت عامل کی نظر میں۔ ایک عامل کے لیے حصار کی حیثیت زندگی اور موت کی سی ہے۔ اگر عمل کے دوران حصار کمزور ہو یا ٹوٹ جائے یا عامل حصار لگانا بھول جائے تو اسے رجت ہو سکتی ہے۔ رجت کا مطلب ہے کہ وہ روحانی طاقت الٹا عامل پر حملہ کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ پاگل پن، شدید بیماری یا بعض اوقات موت کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے حصار پھر وار۔ حصار کی بنیادی اقسام۔ عملیات میں حصار کی کئی اقسام ہیں جنہیں عامل اپنی روحانی طاقت، عمل کی نوعیت یعنی جلالی یا جمالی اور ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر انہیں 3 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حصار لفظی یا دم، the verbal shield۔ یہ سب سے عام اور بنیادی حصار ہے جو چھوٹے اعمال یا روزمرہ کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ، اس میں عامل مخصوص قرآنی آیات جیسے آیت الکرسی، 4 قل یا سورہ یاسین کی آیات پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیتا ہے۔ استعمال، یہ عام مریضوں کی حفاظت یا ہلکے وظائف کے لیے بہترین ہے۔ اس میں کوئی لکیر نہیں کھینچی جاتی بلکہ یہ ایک نورانی غلاف کی طرح کام کرتا ہے۔ حصار تحریری اور لکیر، the physical circle، یہ سب سے مضبوط اور کلاسک طریقہ ہے جو چلہ کشی یا کسی کو حاضر کرنے کے اعمال میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ، عامل وضو کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ لوہے کی ایک چھری یعنی چاقو یا شہادت کی انگلی استعمال کرتا ہے۔ مخصوص آیات جیسے آیت الکرسی 3، 7 یا 11 بار پڑھتے ہوئے چھری کی نوک سے زمین پر اپنے ارد گرد ایک گول دائرہ کھینچتا ہے۔ اس کی شرط، دائرہ کھینچتے وقت سانس روکنا اور لکیر کا کہیں سے بھی نہ ٹوٹنا لازمی ہے۔ جہاں سے لکیر شروع ہوئی وہیں آ کر ملنی چاہیے۔ اس کا فائدہ، جب تک عامل اس دائرے کے اندر رہتا ہے باہر کی کوئی بھی خبیث مخلوق اسے چھو نہیں سکتی۔ وہ دائرے کے باہر عجیب و غریب شکلیں دکھا سکتی ہے، شور مچا سکتی ہے، لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ حصار خیالی، the mental shield، یہ حصار اعلیٰ درجے کے کاملین اور پرانے عاملین کا خاصہ ہے۔ جب عامل کی روحانی قوت بہت بڑھ جاتی ہے تو اسے لکیر کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا طریقہ، عامل اپنی مضبوط قوت متخیلہ یعنی امیجنیشن اور یقین کی طاقت سے اپنے ارد گرد ایک نوری دیوار یا آگ کا دریا تصور کرتا ہے۔ وہ یہ پختہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے گرد ایک فولادی دیوار قائم ہو چکی ہے۔ اس کا خطرہ نئے سیکھنے والوں یعنی مبتدی کے لیے منع ہے، کیونکہ اگر دھیان بھٹک گیا یا خوف طاری ہوا تو حصار خیالی فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ حصار کے مشہور اور مجرب طریقے۔ بطور عامل چند مشہور حصار جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، حصار آیت الکرسی، سب سے افضل۔ عامل اپنی شہادت کی انگلی یا چھری پر دم کرتا ہے، پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا ہے۔ پہلی بار پڑھتے ہوئے دائرہ کھینچتا ہے۔ اگر عمل سخت ہو تو 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر 7 حصار یعنی 7 لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔
ये हिसार लोहे की दीवार की मानंद होता है। नंबर 2, हिसारे कर्द, चाकू वाला हिसार। एक बगैर दंदाने वाली छुरी ली जाती है, उस पर मखसूस अजीमत पढ़कर दायरा लगाया जाता है। अमल खत्म होने के बाद मखसूस अल्फाज बोलकर इस दायरे को काटना यानी खत्म करना भी जरूरी होता है ताकि आमिल बाहर निकल सके। नंबर 3, हिसारे यासीन। सूरह यासीन की पहली मुबीन तक पढ़कर दाएं तरफ फूंकना, दूसरी मुबीन तक पढ़कर बाएं तरफ, इसी तरह 6 तरफ यानी आगे पीछे ऊपर नीचे फूंककर खुद को एक नूरानी किले में बंद तस्वर किया जाता है। चंद अहम उसूल और एहतियातें। एक आमिल के तौर पर मैं इन बातों की नसीहत करूंगा। नंबर 1, दायरा ना तोड़ें। अमल के दौरान चाहे कैसी ही खौफनाक आवाजें आएं या कोई आपका प्यारा बनकर आपको पुकारे, दायरे से बाहर कदम या हाथ ना निकालें, ये छलावा होता है। नंबर 2, तहारत। हिसार लगाने के लिए जिस्म और लिबास का पाक होना शर्त अव्वल है। नापाकी की हालत में हिसार उल्टा गले पड़ सकता है। नंबर 3, हिसार खोलना। अमल मुकम्मल होने के बाद हिसार को बाकायदा तरीके से खत्म करना जरूरी है, जैसे सलाम फेरकर या लकीर को मिटाकर, वरना बाज औकात रूहानी बंदिश का शिकार होने का खदशा रहता है। नंबर 4, कच्चा हिसार। अगर आपको अपनी पढ़ाई या तलफ्फुज पर यकीन नहीं तो कभी भी भारी अमल यानी जलाली अमल ना करें, क्योंकि कच्चा हिसार मौत का पैगाम है। अमलियात की दुनिया में हिसारे आयत कुतुब को एक इंतहाई ताकतवर, जलाली और तीर बे हदफ हिफाजती निज़ाम समझा जाता है। ये आम हिसार जैसे आयतुल कुर्सी या 4 कल से दर्जाबंदी में बहुत ऊपर है और इसे अमूमन बड़े और भारी आमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बतौर आमिल मैं आपको इसकी हकीकत, वजह तस्मिया और तरीक़े कार की तफसील बताता हूँ। आयत कुतुब क्या है? सबसे पहले ये जान लें कि आयत कुतुब कौन सी है। कुरान मजीद में चंद ऐसी आयात हैं जिनमें हुरूफ तहज्जी के तमाम यानी 29 हुरूफ मौजूद हैं। अमलियात के माहिरीन के नज़दीक सबसे मशहूर और मुस्तनद आयत कुतुब सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 है। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसा। इसे कुतुब क्यों कहते हैं? का मतलब है धुरा या मरकज, एक्सिस। अमलियात में हुरूफ की बहुत अहमियत है। चूंकि इस एक आयत में अरबी जबान के तमाम हुरूफ जमा हैं, इसलिए आमिलीन का मानना है कि इस आयत में कायनात के तमाम नूरी और नारी और खाकी और आबी असरात को कंट्रोल करने की जामे तासीर मौजूद है। ये आयत पूरी अबजद की ताकत रखती है। हिसारे आयत कुतुब की खासियत। आम हिसार बदरूहों को रोकते हैं, लेकिन हिसारे आयत कुतुब न सिर्फ रोकता है बल्कि हमला आवर कुव्वत को जैम कर देता है। इसकी तासीर इंतहाई सख्त और गर्म यानी जलाली मानी जाती है। नंबर 1, लोहे का किला। इस हिसार को तोड़ना आम जिन्नात या शयातीन के बस की बात नहीं होती। ये वहां इस्तेमाल होता है जहां आमिल को अपनी जान का शदीद खतरा हो, मसलन तस्खीर जिन्नात के अमल में। नंबर 2, जादू की काट। अगर किसी आमिल पर जादू का हमला हो रहा हो और कोई दूसरा हिसार काम ना कर रहा हो तो आयत कुतुब का हिसार वो आखिरी ढाल है जो जादू के असर को भस्म कर देती है। हिसार लगाने का तरीका आमिलीन के लिए। इस हिसार को लगाने के लिए आमिल का साहिब तरतीब होना जरूरी है, मगर इसका उमूमी खाका ये है। नंबर 1, तैयारी। आमिल वुजू की हालत में लोहे की छुरी या चाकू हाथ में लेता है। नंबर 2, दम करना। छुरी पर पहले 3 बार दरूद शरीफ और फिर ये आयत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 एक खास तादाद में यानी 1, 3 या 7 बार पढ़कर दम किया जाता है। नंबर 3, लकीर खींचना। आयत पढ़ते हुए आमिल अपनी दाएं तरफ से बाएं तरफ यानी घड़ी की सुइयों के खिलाफ एंटी क्लॉकवाइज दायरा खींचता है। नंबर 4, सांस का हब्स। इस हिसार की शर्त यह है कि लकीर खींचते वक्त सांस रोकना पड़ता है। अगर सांस टूट जाए या लकीर बीच में रह जाए तो हिसार नामुकम्मल समझा जाता है। इस हिसार की एहतियातें, वार्निंग। बतौर आमिल मैं ये तंबीह करना जरूरी समझता हूँ। नंबर 1, जलाली असर। चूंकि ये आयत तमाम हुरूफ की ताकत रखती है, इसका हिसार बहुत गर्म यानी जलाली होता है। कमजोर आसाब वाले या नए आमिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें घबराहट या शदीद गर्मी महसूस हो सकती है। नंबर 2, तलफ्फुज की गलती। इस आयत में एक भी हर्फ गलत पढ़ने से हिसार की ताकत खत्म हो सकती है, क्योंकि इसका सारा दारोमदार
तमाम हुरूफ की मौजूदगी पर है। नंबर 3, वापसी का रास्ता। इस हिसार को लगाने के बाद जब अमल खत्म हो जाए तो इसे बाकायदा तरीके से खोलना या काटना बहुत जरूरी है, वरना आमिल की अपनी रूहानियत बंदिश का शिकार हो सकती है। अक्सर नौ आमोज यानी नए सीखने वाले जोश में आकर हिसार लगा तो लेते हैं, लेकिन अमल के इख्तिताम पर इसे खोलना भूल जाते हैं या उन्हें तरीका नहीं आता। इस गलती का नतीजा ये निकलता है कि वो अमलियात की भारी एनर्जी या मुवक्किलात के दायरे में खुद को हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं, जिससे दुनियावी जिंदगी में रुकावटें, रिस्क की तंगी और दिमागी बोझ शुरू हो जाता है। बतौर आमिल हिसार यानी हिसारे लकीर या आयत कुतब वाला हिसार खोलने का बाकायदा और महफूज तरीका दर्ज झैल है। मुवक्किलात की रुखसत। सबसे पहले हिसार तोड़ने से पहले ये लाजमी है कि जिन नूरी या नारी मखलूकात को आपने बुलाया था उन्हें वापस भी भेजें। अगर आप उन्हें भेजे बगैर हिसार तोड़ देंगे तो वो आप पर हमला कर सकते हैं। तरीका: अमल मुकम्मल होने के बाद निहायत अदब से अगर नूरी हैं या सख्ती से अगर शैतानी हैं, कहें बारकल्लाहु फीकुम व अलैकुम इनसरिफू इला मकानिकुम, अल्लाह तुम में और तुम पर बरकत दे, अपने मकामात की तरफ लौट जाओ। जब आपको महसूस हो कि बोझ हल्का हो गया है और हाजरात जा चुके हैं, तब हिसार खोलने की बारी आती है। हिसार काटने का तरीका: दरवाजा बनाना। जिस तरह आपने एक गैर मरई दीवार बनाई थी, अब आपको उसमें बाहर निकलने के लिए एक दरवाजा बनाना है। तरीका: छुरी या चाकू वाला हिसार। जिस छुरी या उंगली से आपने लकीर खींची थी वही हाथ में लें। दायरे के उस हिस्से की तरफ रुख करें जहां से आपको बाहर निकलना है। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। हवा में या जमीन पर लगी लकीर पर छुरी को उल्टी सिमत यानी रिवर्स या क्रॉस की शक्ल में फेरते हुए ये तसव्वुर करें कि आपने वो लोहे की दीवार काट दी है। बाज आमिलीन इस मौके पर सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह एक बार पढ़कर फूंक मारते हैं और हाथ के इशारे से रास्ता खोलते हैं। ये बेहतरीन तरीका है क्योंकि ये फतह और तकमील की निशानी है। दायरे से निकलना। जब आप तसव्वुर में दरवाजा या रास्ता बना लें तो अपना बायां पांव यानी लेफ्ट फुट दायरे से बाहर निकालें। दायरे से बाहर निकलने के बाद फौरन पीछे मुड़कर ना देखें। बाहर निकलकर 3 बार इस्तगफार पढ़ें। हिसार को मिटाना। इख्तितामी मरहला। अगर आपने जमीन पर चौक, कोयले या मिट्टी पर लकीर खींचकर हिसार बनाया था तो उसे वहीं छोड़कर मत जाएं। बाहर निकलने के बाद किसी कपड़े या हाथ से उस लकीर को मिटा दें। मिटाते वक्त दिल में नियत करें कि मैं इस कैद को खत्म करता हूं और अपनी दुनिया में वापस आता हूं। हिसारे आयत कुतब खोलने की खास एहतियात। चूंकि आयत कुतब का हिसार बहुत सख्त होता है, इसलिए इसे खोलने के लिए थोड़ी इजाफी ताकत दरकार होती है। इसके लिए आमिलीन आयतुल कुर्सी एक बार पढ़कर अपनी हथेली पर फूंकते हैं और फिर अपनी हथेली को दायरे की लकीर पर ऐसे फेरते हैं जैसे किसी चीज को पोंछ रहे हों, वाइपिंग ऑफ। साथ ही ये जुमला बोलते हैं, मैंने अपना हिसार खोल दिया, मेरी हिफाजत अल्लाह के सुपुर्द। अगर हिसार ना खोला जाए तो क्या होता है? नुकसानात। रूहानी हब्स। आमिल को हर वक्त सीने पर बोझ और घुटन महसूस होती है। हाजरात की छेड़छाड़। चूंकि रास्ता बंद होता है तो वो असरात आमिल के साथ चिपक जाते हैं और ख्वाब में डराना या बीमार करना शुरू कर देते हैं। बंदिश। आमिल की अपनी रूहानियत जैम हो जाती है और अगले किसी अमल में असर नहीं रहता। खुलासा। अमल शुरू करते वक्त हिसार लगाना अगर फर्ज है तो अमल खत्म होने पर हिसार खोलना वाजिब है। छुरी से कट लगाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर और सूरह नस्र की तिलावत के साथ बाकायदा दायरे से बाहर निकलें और लकीर मिटा दें। इसी में आफियत है। हिसारे आयत कुतब अमलियात का हैवी वेट हिफाजती हथियार है। ये उन जगहों पर लगाया जाता है जहां मुकाबला सख्त तरीन सरकश कुव्वतों से हो और गलती की कोई गुंजाइश ना हो। खुलासा ये है कि हिसार अमलियात की दुनिया का सिक्योरिटी सिस्टम है। एक अक्लमंद आमिल अपनी हिफाजत को अपने अमल की कामयाबी पर मुकद्दम रखता है। 17 फरवरी 2026 पाकिस्तान में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। जो अफराद एक दिन में आयतुल कुतब का आमिल बनना चाहते हैं वो मखसूस शराइत पर इजाजत लेकर मेरी सरपरस्ती में ये अमल कर सकते हैं। बगैर इजाजत अमल ना करें। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आपका भाई M.A. काज़मी।